محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. فوجی جوان موتی لال کے انتقال پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، ایم ایل سی کے کویتا و ایم ایل اے باج ریڈی گووردھن نے کیا افسوس کا اظہار. وہ ہر طرح کی مدد کرنے کا دیا تیقن. ضلع میں بڑے پیمانے پر محکمہ پولیس میں تبادلے، آئی جی شیو شنکر نے کیا صحافتی بیان جاری. جکران پلی ایم پی ڈی او نے کی اقدام خودکشی، تبادلے سے ناخوش ہونے کے سبب اقدام خودکشی کا خدشہ. سابقہ کوآپشن ممبر سید قیصر کی جانب سے 18 جنوری کو کسان بچاؤ اور جوان بچاؤ احتجاج رن کا اعلان. اندلوئی منڈل میں قبرستان کی اراضی پر قبضے کی کوشش، آواز اٹھانے والے قائدین پر مقدمات درج، افسوس. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. فوجی جوان موتی لال کے انتقال پر رکن کونسل کویتا کا اظہار تعزیت، افراد خاندان کو ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کا دیا تیقن. رکن قانون ساز کونسل کلور کنٹلا کویتا نے سڑک حادثے میں جاں بحق نظام آباد کے فوجی جوان کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا. نظام آباد کے سدا شیون نگر سے تعلق رکھنے والے 25 سالہ جوان ڈیگو موتی لال 28 دسمبر کو اپنے آبائی مقام پر ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، جن کو بغرض علاج حیدرآباد کے عالمی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ زیر علاج تھے. آج صبح وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے. محترمہ کویتا نے اپنے تعزیتی پیام میں کہا کہ جوان موتی لال کی موت پر مجھے گہرا صدمہ پہنچا ہے. میری ہمدردیاں شہید جوان کے افراد خاندان کے ساتھ ہے. کویتا نے موتی لال کے افراد خاندان کی ہر طرح سے مدد کی یقین دہانی کرائی. ضلع نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے آج سیل کانفرنس کے تحت 16 تاریخ سے کووڈ ٹیکہ اندازی کو عمل میں لانے کے مد نظر ذمہ دار عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. ضلع نظام آباد کلکٹر سی نارائن ریڈی نے آج سیل کانفرنس کے تحت اس ماہ کی 16 تاریخ سے آغاز کورونا ویکسین عمل میں لانے کے مد نظر ذمہ دار عہدیداران سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ بروز ہفتے کو کووڈ ویکسین کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے منتخب کردہ گورنمنٹ جنرل ہاسپٹل، بودھن ایریا ہاسپٹل، ڈچپلی، مورتاڑ، آرمور، ماکلور کے 4 مراکز میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق 6 مراکز میں ویٹنگ روم کو کشادہ بناتے ہوئے وہاں پر آنے والے وی آئی پی عہدیداران کو بیٹھنے کی سہولیات کا قیام عمل میں لائے اور ایک ٹی وی نصب کر کے کیبل کنیکشن دیا جائے. اسی طرح سے مرکز کے اطراف کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے عوام کے لیے پینے کے پانی کی سہولیات کے ساتھ سینیٹائزر بھی دستیاب رکھ کر برقی کی سربراہی میں رکاوٹ نہ آنے کے لیے کارروائی کرنے کے لیے اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 کے اصول و ضوابط ہر ایک فرد عمل کرنے کے مطابق اقدامات عمل میں لائے جانے کے لیے احکامات جاری کیے. انہوں نے کہا کہ تمام سینٹرز میں موجود ٹوائلٹ کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے تقریباً 10 بستروں کو دستیاب رکھ کر ہر مرکز کے سسٹم کے ساتھ نیٹ کنیکشن کا قیام عمل میں لانے کا اظہار کیا اور کہا کہ دوسرے کمرے میں ویکسین دینے کے لیے تیار رکھ کر تیسرے کمرے کو آبزرویشن کے لیے مستحق کرنے کا انکشاف کیا. اس سیل کانفرنس میں ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر
DMNHO लता सुदर्शनम, जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज व दीगर इंचार्ज, डिप्टी CMNHO, अहम तरीन ओहदेदार गोविंद, नरसिंह नायक, शशिकला, रमेश, RDO, रवि राजेश्वर, श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। अपने तजुर्बे व अवाम की जरूरियात को समझते हुए डिवीजन नंबर 59 में इंचार्ज कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान की क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी। डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों 65 लाख के तरक्याती कामों का हुआ आगाज, अवाम में खुशी की लहर। निजामाबाद के सीनियर सियासतदान बेबाक कायद वो सीनियर मजलिसी कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान की क़यादत में निजामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 59 में गुज़िश्ता 2 सालों में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए और डिवीजन नंबर 54 केनाल को काफी अरसे के बाद इन्हीं की क़यादत में साफ करवाते हुए अवाम को राहत दी गई। आज जिनकी नुमाइंदगी पर डिवीजन में 65 लाख की लागत से तरक्याती कामों का आगाज डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस व बल्दिये फ्लो लीडर शकील फाजिल के हाथों अमल में आई। इस मौके पर इन्होंने इनकी खिदमात की सताइश की इस तकरीब में सरफराज खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखिम वो इलाके के जिम्मेदारों ने शिरकत की। डिवीजन नंबर 59 जहाँ पर CC रोड का आज इनाग्रेशन अमल में आया है। मेहमान खुसूसी निजामाबाद डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, इमाम सदर निजामाबाद शकील अहमद फाजिल साहब और रियाज कारपोरेटर, एजाज कारपोरेटर, मुकीम कारपोरेटर, एक कारपोरेटर और भी हमारे साथी कारपोरेटर्स और महल्ले के बुजुर्ग कायदीन, दोस्त अहबाब, तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर इस रोड का तनाज़ा तकरीबन 15-20 साल से तनाज़ा था और हमारे अब्दुल रहमान साहब मरहूम के साहिबजादे अब्दुल मलिक बाबर और आमिर जुबैर उनके साहिबजादे हैं। उन्होंने 1-2 दिन पहले यहाँ पर आकर ये तय करे कि हम ये महल्ले के लिए जगह छोड़ रहे हैं। पिछली मियाद में भी ये रास्ते के ताल्लुक से बात आई थी, लेकिन वो वक्त खास था और उसके लिए मैं खुसूसन हमारे खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खान साहब ही थे और खान साहब ही की वजह से ये रोड जो बहाल हुई। तौहीद की दावत, खिदमत खल्क, असला व माशरे अहले हदीस का पैगाम। अमीर मरकजी जमियतुल अहले हदीस हिंद शेख असगर अली, इमाम मोहिदी और दीगर उलमाए दीन का जामा मस्जिद अहले हदीस निजामाबाद पर खिताब। तंजीम व इज्तिमाइयत, अमन व सलामती, इसार कुर्बानी हमारे इस्लाफ की पहचान है। इस मुल्क की तामीर में सल्फ सालहीन की नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ हैं। आज अपने अंदरूनी इखलास पैदा करे, अपनी ज़ात व शख्सियत को मनवाने की नहीं बल्कि बेलूस काम करे ताकि सब लोग आपस में मुतहदा मुनज़्ज़िम होकर काम करे। सूबाई जमियतुल अहले हदीस तेलंगाना के ज़ेर एहतिमाम जिले निजामाबाद में एक तंजीमी व तरबियती कन्वेंसेशन का बरोज़ जुमेरात बमुकाम जामा मस्जिद अहले हदीस बोधन रोड पर बाद नमाज असर ता इशा इनेकाद अमल में आया। इस कन्वर्सेशन से शेख असगर अली, इमाम मोहिदी, अमीर मरकजी अहले हदीस हिंद ने सदारती खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। शेख असगर अली, इमाम मोहिदी ने जुम्मेदारान तंजीम की औसाफ हमीदिया पर रोशनी डाली। इजलास का आगाज अब्दुल्ला अबरार की तिलावत कुरान पाक से हुआ। वजहुल्लाह खान ने इस्तकबालिया पेश किया। मौलाना डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, अमीर सूबाई जमियत तेलंगाना ने मरकजी जमियत की मुल्क रहनुमाई मुकम्मल रहनुमाई में तैयार किए जाने वाले फेशियल एप्लीकेशन ऐप का तारुफ और इसके मकासिद प्रोजेक्टर पर पेश किए, जिससे सल्फियान बाहम मरबूत व मुनज़्ज़िम होंगे। सही व मुस्तनद ज़राए से आमतुल मुस्लिमीन की रहनुमाई, ऑनलाइन फतावी, काउंसलिंग, वफाक मसाजिद व मदारिस पर रोशनी डाली। मौलाना अबेदुल्ला फैजी ने ईसार व कुर्बानी, मौलाना वाजिद हुसैन मदनी ने तौहीद की फजीलियत, मौलाना अफरोज खान फैजी ने एहसास जिम्मेदारी पर बसीरत अफराद खिताबात की। इजलास की नज़ामा शेख अतीक रहमान ने की। मेहमान खुसूसी हाफिज अब्दुल क़य्यूम, नायब अमीर मरकजी जमियतुल अहले हदीस ने तासुरात पेश किए। डिप्टी मेयर इदरीस खान ने मेहमानों की शालपोशी की। जिले निजामाबाद के साबिक़ जिम्मेदारों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। जिम्मेदारान जिले व शहर के अलावा दीगर अजला से आए हुए कारकुनान और आमतुल मुस्लिमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। दुआ पर इजलास का इख्तिताम हुआ।
ہندوستان کے اپنے 23 اسٹیٹ میں خاص طور پر جہاں ہماری جمعیت کی صوبائی جمعیتیں قائم ہیں، تلنگانہ میں بھی ہماری جمعیت قائم ہے اور اس کے صوبے کے یہاں ذمہ داران موجود ہیں مرکزی جمعیت کے وفد کے ساتھ، اور ہماری نظام آباد کی شہری جمعیت اہل حدیث نے انتظام کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ضلعی جمعیت نے بھی مقامی جمعیت کے جوانوں میں بڑا جوش اور ولولہ ہے، بزرگوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، کہ ایک پیغام جو بہت بڑی مصیبت سہنے کے بعد ہم نے میدان میں آئے ہیں تو ان کو پیغام دیں، ایک تسلی دیں، جو کچھ ہوا اس پر جو انہوں نے صبر سے کام لیا، آئندہ کے لیے ملک و ملت اور انسانیت کی تعمیر ہو، کیسے ہو، اور اس پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو کوپریٹ کر کے کیسے ہم آگے بڑھیں، یہ پیغام عام کرنے کے لیے، اپنے بھائیوں کی ڈھارس بڑھانے کے لیے ہم نے یہ یاترا اور یہ دورہ شروع کیا ہے۔ درگاہ شریف الحاج شاہ سعد اللہ المعروف با کمالی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف کا شاندار پیمانے پر انعقاد، مختلف ریاستوں سے عقیدت مندوں نے کی شرکت۔ نظام آباد شہر کے قدیم قبرستان میں موجود درگاہ شریف الحاج شاہ سعد اللہ المعروف با کمالی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قادری چشتی نقش بندی اکبری کا عرس شریف ہر سال کی طرح اس سال بھی شاندار پیمانے سے اہتمام عمل میں لایا گیا۔ سندل مبارک خانہ خواہ سیدیہ غوثیہ کمالیہ محلہ بھلانگ نظام آباد سے زیر سرپرستی پروفیسر ڈاکٹر شاہ مظہر پاشا قادری چشتی نقش بندی خلق و خلیفہ ثالثہ حضرت شاہ سعد اللہ المعروف کمالی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ نشین سلسلہ سعدیہ غوثیہ کمالیہ اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر درگاہ شریف پر تلاوت قرآن و آیت کریمہ کا بھی اہتمام کرتے ہوئے تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت شاہ طاہر پاشا، حضرت الحاج محمد منور پاشا، سید زہیب و دیگر نے شرکت کی۔ المعروف بکمالی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ پیر غوثی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے سعدیہ غوثیہ کمالیہ، سلاسل قادری چشتی نقشبندی سہروردی اویسی سلسلے سے حضرت کی نسبت ہے، حضرت اس سلسلے کے سجادہ نشین ہیں اور خلیفہ ہیں اور نظام آباد کے مشہور و معروف ہستی ہیں۔ الحمدللہ حضرت تقریباً اپنے 84 سال سے نظام آباد میں، یعنی آج 44واں عرس حضرت کا، اس سے پہلے حضرت 63 سال کی آپ کی زندگی میں آپ خدمت کرے دین کی۔ الحمدللہ آج حضرت دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 44واں عرس ہے۔ ہندوستان کے تمام ملکوں سے، تمام شہروں سے مریدین متخدین آتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے حضرت کا، اور الحمدللہ اس کے جانشین حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اپنے زندگی میں 18 سال تک خدمت کرتے رہے۔ ان کا بھی آج یوم وصال ہے، آج ان کا بھی عرس ہے، اور ان کے ساتھ ان کے اور ایک صاحبزادے حضرت نیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی آج پہلا یوم وصال ہے۔ الحمدللہ حضرت شاہ سعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے، روشن ضمیر تھے۔ آپ الحمدللہ ہر ایک کے لیے جو فرماتے تھے وہ الحمدللہ ہوتا تھا اپنی زندگی میں۔ آپ نے جس کے لیے جو کیا، جو فرمایا وہ ہوا۔ آج بھی الحمدللہ ان کا فیضان جاری و ساری ہے، ان کے مزار سے، ان کے خلفاء سے آج بھی الحمدللہ لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ آج بھی لوگ اپنے مسائل کو، اپنے پریشانیوں کو آ کے یہاں حل کرتے ہیں۔ عرس میں بھی الحمدللہ آتے ہیں، اپنے تمام دعاؤں کو، اپنے تمام حاجتوں کو لے کے آتے ہیں، اور تقریباً لوگوں کے الحمدللہ پورے ہوتے ہیں۔ حضرت کیونکہ حضرت عارف باللہ تھے، مریدین کو، اہل سلسلہ کو دین کی تعلیم، علم توحید کی تعلیم دیتے تھے، اور آج بھی ان کے خلیفہ، ان کے جو بھی خلفاء صاحبین ہیں وہ الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر ایک بار قبرستان کی اراضی پر قبضے کی کوشش، آواز اٹھانے والے مسلم قائدین پر مقدمات درج، افسوس، اعلیٰ عہدیدار و قائدین سے انصاف کا مطالبہ۔ آج کل لینڈ مافیا کے لیے قبرستان وقف بورڈ کی اراضی پر قبضہ کرنا کافی آسان کام ہو گیا ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا کمزور سیاسی موقف و مؤثر نمائندگی نہ ہونے کے سبب وقف اراضی و مسلم قبرستانوں پر قبضہ کرنا کافی آسان ہو گیا ہے۔ تازہ مثال اندلوئی منڈل کی ہے، جہاں پر موجود قبرستان کی اراضی کو لینڈ مافیا نے قبضہ کرنے کی پہلے تو کوشش کی، اور بھی آواز اٹھانے والوں پر SC/ST ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے، جس پر مقامی عوام میں برہمی پائی جا رہی ہے، جس پر انہوں نے ان کے ساتھ انصاف کرنے کا مقامی عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا۔
దర్గా మస్జిద్ గురించి కొన్న భూమి మీద మేము ఇప్పటిదాకా పంట పండించి మేము కబ్జా మీద ఉన్నాక వాళ్ళు వచ్చి ఇతరులు వచ్చి దాని మీద దౌర్జన్యం చేసి మాకు కొడతాని బెదిరించి వాళ్ళు మిషన్లు పెట్టుకున్నారు, అన్నీ పెట్టుకున్నారు. మేము చూసాం, పోయి కలెక్టర్ దాకా పోయి ప్రజావాణిలో మనం ఇచ్చినాం. సార్ ఏమన్నాడు, గ్రౌండ్ రిపోర్టింగ్ ఉన్నాడు, అది యూరి అని అన్నాడు. ఇప్పుడు మా భూమి ఎంఆర్ఓ సబ్జెక్ట్ చేస్తే ఎంఆర్ఓ సార్ ఏమన్నాడు, మీ భూమి ఉన్నది, మీకు అధికారం ఉన్నది, దానికి ఏమైనా చేసుకుని అన్నారు. వాళ్ళు ఇతరులు రాకుండా కోరుతున్నాం, మా ముందు మీరు రావద్దు, మేము మా గురించి మా కమ్యూనిటీ గురించి కొన్న భూమి అది, మీరు రావద్దని మేము కోరుతున్నాం అంతే. सईद खैसर का 18 जनवरी को किसान बचाओ जवान बचाओ एहतजाजी रन। सईद खैसर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ने मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा ज़रई बिल की शदीद मुखालिफत करते हुए बताया कि 18 जनवरी बरोज़े पीर बमुकाम फुलांग चौराहे से बतौर एहतजाज किसान बचाओ जवान बचाओ एहतजाज का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि ये एहतजाजी रन टेक 12:30 से शुरू होगा, जो वर्नी रोड, RR चौराहा, बड़ा बाजार, इकबाल मीनार, गांधी चौक से गुजरता हुआ तिलक गार्डन पर लाल बहादुर शास्त्री मुजस्सिमे पर इख्तिताम पजीर होगा। बातजा सईद खैसर जिले कलेक्टर को तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करेंगे, जिसमें ज़रई बिल से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया है। सईद खैसर ने हुकूमत तेलंगाना से भी पुरजोर मुतालबा किया कि खुसूसी असम्बली इजलास मुनक्किद करते हुए ज़रई बिल की मुखालिफत में करारदाद मंजूर की जाए और सदर जमहूरिया रवाना किया जाए। सईद खैसर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम खिलाड़ियों से पुरखुलूस अपील की कि एहतजाजी रन में हिस्सा ले। मज़ीद तफसीलात के लिए सईद खैसर के फोन नंबर 9849283407 पर रब्त पैदा करें। किसानों का एजुटेशन शुरू होके 100 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं। किसान अपनी ज़मीन को, अपने अनाज को बचाने के लिए हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान इस देश का बैकबोन है, कमर की हड्डी की तरह है। और आज मोदी गवर्नमेंट इन किसानों के साथ खेल खेल रही है, जो कई किसान अपनी जान को दे चुके हैं। इस एजुटेशन में किसान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के फौजियाँ जो किसान के बेटे हैं वो लोग भी एजुटेशन में हिस्सा ले रहे हैं। उसी तरह तेलंगाना के अंदर भी तेलंगाना गवर्नमेंट KCR साहब, KTR साहब और कविता मैडम निज़ामाबाद में नेशनल हाईवे पे भी एजुटेशन किया, रास्ता रोको कर उन्होंने किसानों के साथ हमदर्दी जताई। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले में मैं पीर के दिन दोपहर के वक्त 12:30 बजे से पहले इंशाअल्लाह फुलांग चौरस्ता से शुरू होते हुए रन करूंगा। मैं मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम भाइयों को लेकर, क्योंकि मैं अकेला भागूंगा, रन करूंगा। किसान बचाओ और जवान बचाओ और मुल्क बचाओ, यही हमारा मुद्दा इस एजुटेशन का, इस रन का हिस्सा है। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने 16 जनवरी से आगाज होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 4 मरकज का क़याम अमल में लाने का किया इंकशाफ। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सदाशिवनगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मौजूद वैक्सीनेशन का मुशाहिदा करके वेडिंग वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन कमरे का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सदाशिवनगर बिकनूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कामरेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, राजीव नगर अर्बन हॉस्पिटल में 4 मुकामात पर वैक्सीनेशन देने का इजहार करते हुए कहा कि पहले मरहले के तौर पर महकमे सेहत के ICDS मेंबरान को वैक्सीनेशन देने के साथ हर सेंटर में 50 अफराद को वैक्सीनेशन देने के लिए तिब्बी अमले का क़याम अमल में लाया गया है। इसी तरह से मरकज में वैक्सीनेशन देने के बाद 30 मिनट तक मुशाहिदे में रखने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिले एडिशनल कलेक्टर P यादिरेड्डी, जिले मुकामी तंजीम के एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश, रेवेन्यू डिविजनल ओहदेदार S श्रीनु, जिले महकमे सेहत के ओहदेदार डॉक्टर चंद्रशेखर, RDO श्रीनु, तिब्बी अमले ने शिरकत की। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली एरगटला मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को अवामी नुमाइंदों के हाथों CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली एरगटला मंडल में राजेंद्र नगर, एरगटला, बट्टापुर, दोमचंद व दीगर मौज़ूआत में मंडल TRS पार्टी सदर A राजा पूर्णा नंदम की निगरानी में मंडल MPP कोली पागा उपेंद्रा, ZPTC अब्बन्ना राजेश्वर ने व दीगर मौजे के सरपंच मंजुला बालाजी गौड़, राधा गंगाराम, सोमा राजा रेड्डी, लावण्य गंगाधर के हाथों मुस्तहिक़ीन में CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते
करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुख्तलिफ तरक्याती और फलाही स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने के साथ सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के इलाज व मुआलजे के लिए अखराजात की अदायगी को मद्देनजर रखकर इन्हें CMRF के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस बालकुंडा हल्का असम्बली एरगटला मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद को हॉस्पिटल के अखराजात को मद्देनजर रखकर इन्हें CMRF के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाने में इनकी अहम तरीन खिदमात शामिल होने का इजहार किया और इन्होंने अपनी जानिब से मुस्तहिक़ीन की निशानदही करके तकरीबन 5 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाकर इस्तेफादा कुनिनगान को CM रिलीफ फंड के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। बरक़ी तार से छेड़छाड़, नवीपेट का साकिन रज़ाक जलकर फौत। नवीपेट मंडल की मुकाम पर सुभाष नगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ाक नामी शख्स ने एक वेल्डिंग दुकान में बरक़ी की सरबराही में रुकावट आने के बायस करंट के खंभे पर मरम्मत करने के लिए दौरान केवी लेवल बरक़ी के तार चिस्पा होने पर चिंगारियों की जद में आकर आधा झुलस जाने से तशवीशनाक सूरत हाल में हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान फौत हो गया। मुकामी अवाम के मुताबिक रज़ाक को 4 महीने कबल ही शादी होकर ऐसा दर्दनाक वाक़या पेश आने से मौज़े में गम की लहर दौड़ गई। अप्रैल में इंटरमीडिएट इम्तहानात का इम्कान, पर्चा सवालात 70% निसाब पर मुश्तमिल होगा, जल्द एलामिया मुतवक्किल। इंटरमीडिएट इम्तहानात 2021 के अप्रैल में इनेकाद के इम्कानात है। प्रैक्टिकल इम्तहानात अप्रैल के दूसरे हफ्ते में हो सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल इम्तहानात के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से अनकरीब ऐलान किया जाएगा। बोर्ड ओहदेदार ने बताया कि 1 फरवरी से जूनियर कॉलेजेस की कुशादगी अमल में आ रही है। 2 माह क्लासेस के बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इम्तहानात का आगाज होगा, जो अप्रैल के दरमियानी माह तक जारी रहेंगे। थ्योरी इम्तहानात से कबल प्रैक्टिकल का इनेकाद होगा। दोनों का शेड्यूल जारी करने में बोर्ड ओहदेदार मसरूफ है। हुकूमत ने 1 फरवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी की इजाजत दी है। 9वीं जमात से क्लासेस शुरू करने तैयारियां हो रही हैं। बोर्ड ने फीस नोटिफिकेशन जारी करने तैयारियों में तेजी पैदा कर दी। इम्तिहानात के पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं की जा रही है। बोर्ड की जानिब से पर्चा सवालात में ज्यादा इम्कानात देने का फैसला किया गया। तुलबा को 7 सवाल देकर 3 का जवाब तहरीर करने की इजाजत दी जाएगी, जबकि पहले 5 देकर 3 का जवाब लिखने की शर्त होती थी। निसाब को 70% तक महदूद रखा जा रहा है। माँ बाकी 30% असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पर मुश्तमिल रहेगा। इंटर तुलबा के लिए 31 मार्च तक दूरदर्शन और TSAT चैनल्स पर डिजिटल ऑडियो विजुअल लेक्चरर्स रहेंगे। महकमे तालीम ने जूनियर कॉलेजेस की कुशादगी के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। अंदरून 300 तुलबा को कुशादा हॉल्स रेगुलर शिफ्ट 9 शाम 4 बजे पढ़ाने अहकामात जारी किए गए हैं। 300 से ज्यादा तुलबा की सूरत में 2 शिफ्टों सुबह 8:30 तक, दोपहर 12:30 तक एक शिफ्ट, फिर दोपहर 1:30 तक, शाम 5:30 तक दूसरी शिफ्ट में तालीम के अहकामात जारी किए गए। साथ ही कॉलेज इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो हर बेंच पर सिर्फ एक तालिब इल्म इस तरह एक क्लास में सिर्फ 30 तुलबा को बैठाएं। इसके अलावा कोविड-19 के रहनुमाना उसूलों पर सख्ती से अमलावरी करें। चावल की पैदावार में तेलंगाना मुल्क के मरकज में तब्दील। साल 2019-20 में 1.3 करोड़ टन चावल की पैदावार, FTCCI रिपोर्ट में इंकशाफ। रियासत तेलंगाना में हर साल चावल की पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। FTCCI की रिपोर्ट में बताया गया है कि रियासत में चावल की पैदावार में 20% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इस तरह साल 2019-20 में चावल की पैदावार 1.3 करोड़ टन तक पहुंच गई। 2017-18 में ये पैदावार 62.5 लाख टन थी। इसी तरह 2016-17 में 51.7 लाख टन और 2015-16 में 29.6 लाख टन रिकॉर्ड की गई थी। रियासती हुकूमत ने किसानों के बहबूद के लिए कई इक़दाम किए हैं। खास तौर पर आपाशी के शोबे में इनकलाबी इक़दाम से किसान मुतमईन है। FTCCI की रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले बरसों में चावल की पैदावार में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने किसानों को राहत पहुंचाने और ज़राई शोबे को मुस्तहकिम करने के लिए 60 लाख एकड़ फाजिल अराजी के लिए कई प्रोजेक्ट्स की तकमील की है, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट, देवदोला प्रोजेक्ट और मिशन काकतिया के तहत तालाबों की अहिया के
प्रोजेक्ट इसकी मिसालें हैं। किसानों को हुकूमत मुफ्त बरखे सरबराह कर रही है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में 14.19 लाख एकड़ अराजी पर चावल की काश्त होती है। इसी तरह कौमी सतह पर चावल की पैदावार में इसके हिस्से में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2015-16 में ये हिस्सा 2.84% था, जो अब बढ़कर 2017-18 में 5.54% हो गया है। इसका मतलब 3 वर्षों में 2 गुना इजाफा हुआ है। अगर कौमी सतह पर जायजा ले तो साल 2019-20 में 117.47 मिलियन टन चावल की पैदावार हुई। अगर हिंदुस्तान से गैर बासमती चावल की बरामद का जायजा ले तो इस मामले में तेलंगाना के हिस्से में बेहतरी नहीं आई है। कौमी सतह पर 5.8 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किया गया, जिसमें तेलंगाना का हिस्सा 10.425 टन रहा, यानी 0.21% रहा, जबकि आंध्र प्रदेश का हिस्सा 33.6% रहा। नसरुल्लाबाद मंडल संगम तांडे के नेहरू युवा केंद्रम व सेवा संगम फ्रेंड्स यूथ की निगरानी में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती तकरीब को मद्देनजर रखते हुए छोटे बच्चों के लिए खेलों के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। नसरुल्लाबाद मंडल संगम तांडे के नेहरू युवा केंद्रम और सेवा संगम फ्रेंड्स यूथ की निगरानी में स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती तकरीब के तहत आज छोटे बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सेवा संगम फ्रेंड्स यूथ नायब सदर सुनील राठौर ने बात करते हुए कहा कि आर्मी डे, संक्रांति त्योहार और विवेकानंद जयंती के मद्देनजर छोटे बच्चों को त्योहार की खुशियों में दोबारा करने के मकसद के तहत बच्चों के लिए साइकिल रैली, 2K रन, किपिंग और मुख्तलिफ मुकाबला जाती खेलों का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि स्वामी विवेकानंद एक बेहतरीन शख्सियत के हामिल थे, जिन्होंने हुकूमत की सकाफत और रुवायत को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। नौजवान शोबों में अपने हुनर के मुताबिक अपना रोल अदा करे और मुल्क को तमाम शोबों में तरक्की की राह पर गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में NYK, राहिल, नवीन, महेंद्र, प्रवीण, शेखर व संतोष व दीगर ने शिरकत की। कविता ने खातून मुसन्निफीन के ऑनलाइन फोरम का इफ्तिताह किया। तेलुगु विमेन राइटर्स फोरम के 25 मुसन्निफीन पर मुश्तमिल एक वफद ने आज तेलंगाना रुकन कानून साज कौंसिल कल्वकुंटला कविता से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें साल नौ और संक्रांति त्योहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रुकन कौंसिल कविता ने फोरम की वेबसाइट अक्सटाइन का भी इफ्तिताह किया। बातजा कविता ने कहा कि विमेन राइटर्स फोरम अपने कलम के जरिए खवातीन पर होने वाले जुल्म व ज्यादती को रोकने आवाज उठाती है और मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए सरकर्दा है। कविता से मुलाकात के लिए आने वाले 25 खातून मुसन्निफीन की वफद की क़यादत मुमताज मुसन्निफा इनमपुरी श्री लक्ष्मी कर रही थी। कविता ने वेबसाइट का इफ्तिताह किया और वेबसाइट के डिजाइन की खूब सताइश करते हुए डिजाइनर्स को मुबारकबाद दी। कविता ने बातजा निमिरिशा जाना की गारी पोइट्री मुकाबले के कामयाब होने वालों में इनामात की तकसीम की। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ डायरेक्ट कल्चर अफेयर्स मामड़ी हरि कृष्णा वेणुगोपाल चारी के अलावा कई दीगर मुसन्निफीन भी मौजूद थे। जिले निजामाबाद के CPM दफ्तर में AKSCC जिले कमेटी का इजलास M गंगाधर की सदारत में मरकज की ज़रे क़वानीन के खिलाफ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के CPM दफ्तर में AKSCC जिले कमेटी का इजलास M गंगाधर अप्पा की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में जॉर्ज रेड्डी की जयंती के मद्देनजर 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इसके बाद तेलंगाना रायतु संगम जिले सदर M गंगाधर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई 3 ज़रे क़वानीन को फौरी वापस लेते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने की गुजारिश की और कहा कि मरकज की जाबिर मुतक्किबराना हुकूमत पिछले 51 दिनों में किसान दिल्ली की सरहदों पर इनके काले क़वानीन के खिलाफ लाखों की तादाद में एहतजाज कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मरकज की बीजेपी हुकूमत नशे में चूर है। अब तक इस एहतजाज में 60 किसानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसके बावजूद मरकज की जाबिर हुकूमत टस से मस्त नहीं हो रही है। यह आजाद मुल्क के लिए एक बदनुमा दाग के मानिन होने का इंकशाफ किया। ఢిల్లీలో గత 40-42 రోజులుగా కొనసాగుతున్న ఆందోళన ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం ఇవాళ చర్చలకు పిలిచింది. ఇవాళ చర్చలైనా పరిష్కారం చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం. కానీ ప్రభుత్వం మొండిగా వ్యవహరిస్తూ చర్చలు వాయిదా వేయడానికి సాకుగా తీసుకుంటున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం. ఢిల్లీ రైతులు ఇప్పటికి కూడా నిక్కచ్చిగానే నిలబడి పోరాటాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు మద్దతుగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఆందోళన కొనసాగుతుంది అనేక చోట్ల. దాంట్లో భాగంగానే నిజామాబాద్ AIKSCC
జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సమావేశం జరుపుకొని आरडीओ राजेश्वर का दौरा बोधन सरकारी हॉस्पिटल कोविड वैक्सीन के मद्देनजर तैयारियों का लिया जायजा। आरडीओ राजेश्वर राव ने जुम्मा के दिन कोरोना वैक्सीन के तनाजुर में बोधन के जिले सरकारी अस्पतालों का मुआयना किया। सुपरिंटेंडेंट अन्नपूर्णा और आरएमओ डॉक्टर रहीम ने हफ्ते के रोज महत्वाकांक्षी से चलने वाली कोरोना वैक्सीन के इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। इसके बाद इन्होंने डॉक्टरों से मीटिंग की और इंतजामात के सिलसिले में हिदायत। आरडीओ ने इस मौके पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि वैक्सीन की वबा के अंधेरों को मिटा दिया जाए। इन्होंने कहा कि वैक्सीन के बारे में किसी भी तरह की अफवाहों को ना देखें। इन्होंने मजीद कहा कि हफ्ते को बोधन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 30 माह के जंगजू को खतरे पिलाए जाएंगे। రేపు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసినటువంటి కేంద్రాల్లో ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా మన దగ్గర ఏరియా హాస్పిటల్ బోధనను ఎంపిక చేశారు. దీంట్లో ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ అయినటువంటి మన హాస్పిటల్ సిబ్బందికి రేపు సూపరింటెండెంట్ గారి పర్యవేక్షణలో ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది. 30 మందికి మనము వ్యాక్సినేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగా రేపు 10 గంటలకు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. 10:30కి మనకు వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రారంభమవుతుంది. మొదట విఐపీస్ను అందరినీ ఇన్వైట్ చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని ప్రసంగం తదనంతరము విఐపీ చేత ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం 1 o'clock వరకు ఈ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రభుత్వము ఒక మొత్తం మానవాళి చరిత్రలో ఒక గొప్పదైనటువంటి ఒక వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. దాంట్లో భాగంగా మన దేశంలో కూడా మొట్టమొదటిసారిగా ఇన్ని కోట్ల మంది ప్రజలకు వ్యాక్సినేషన్ అనేది టేకప్ చేసాం. అంటే దేశాన్ని కరోనా రహితంగా మార్చడంలో ఈ ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం. దాంట్లో భాగంగా ఇంకొకటి ఏంటంటే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి భారత్ బయోటెక్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంపెనీ కూడా వ్యాక్సినేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. మరి దీనికి కూడా టేకప్ చేసి అంటే మన సామర్థ్యాన్ని ఈరోజు మనం ప్రపంచానికి నిరూపించేటువంటి ఒక సుధావకాశం కలిగి ఉంది. కాబట్టి आरमूर शहर के पेरकेट में विनायक नगर कॉलोनी में मुनक्किद करदा रंगोली मुकाबला जात में कामयाब करार दिए गए तुलबात को म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन के हाथों इनामात की तकसीम। आरमूर शहर के पेरकेट में विनायक नगर कॉलोनी में संक्रांति त्यौहार के पेश नजर रंगोली मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन, मुकामी काउंसलर मुरलीधर रेड्डी ने शिरकत करते हुए रंगोली मुकाबला जात में कामयाब करार दिए गए खवातीन लड़कियों को इनामात की तकसीम अमल में लाकर इनकी सलाहियत व काबिलियत की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि खवातीन हर मैदान में तरक्की करके आला ओहदे पर फायज होकर अहम तरीन खिदमत अंजाम देकर दीगर रियासत तेलंगाना का नाम रोशन करने का इजहार किया। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि जारिया साल कोरोना वायरस के दौरान तमाम अवाम की जिंदगी दरहम बरहम हो गई, लेकिन 2021 में कोरोना के मसले से निजात हासिल करके सारे तेलंगाना के अहलियान अवाम खुशहाल जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की। डिप्यूटेशन पर तबादले अमल में लाने पर जहनी तनाव के मद्देनजर एमपीडीओ ने की खुदकुशी की कोशिश। तफसीलात कुछ इस तरह। जिले निजामाबाद जकरान पल्ली में एमपीडीओ के ओहदे पर खिदमत अंजाम देने वाले भारती को डिप्यूटेशन पर श्रीकोंडा मंडल को तबादला अमल में लाने पर नाराजगी जाहिर कर आला ओहदेदारान से रब्त पैदा कर तबादले को मनसूख करने की गुजारिश को नजरअंदाज करने के बायस नींद की गोलियों का इस्तेमाल अमल में लाकर इक़दाम खुदकुशी करने का रिश्तेदारों की जानिब से इंकशाफ करते हुए कहा कि फिलहाल हैदराबाद में रिहाइश पजीर है। इनके अपने रिहाइशगाह में नींद आवार गोलियों का इस्तेमाल करके इक़दाम खुदकुशी करने पर फौरी तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का इंकशाफ किया। जिले निजामाबाद 2 टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर पी प्रभाकर भीमगल पीएस को डी श्रीनिवास निजामाबाद 2 टाउन पीएस को तबादला अमल में लाया गया। इसी तरह से भीमगल एसआई के श्रीधर रेड्डी, मेंडूरा पीएस मेंडूरा, एसआई पी सुरेश मोरताड़ पीएस मोरताड़, एसआई एम संपत कुमार को वीआर, वेलपुर एसआई पी श्रीधर गौड, कमरपल्ली पीएस कमरपल्ली, एसआई एमडीआरएफ को एरगटला में एरगटला, एसआई बी हरिप्रसाद को मोपकाल एसआई पी राघवेंद्रा को बालकुंडा
गोलकोंडा एसआई टी श्रीहरि को वीआर, नारायणखेड़ एसआई की संदीप निजामाबाद फोर्ट टाउन पीएस में, निजामाबाद फोर्ट टाउन एसआई को वीआर, मेदक वीआर में मौजूद बी संतोष कुमार को सिंगारेड्डी जिले कोंडापुर पीएस को लाया गया। कोंडापुर एसआई के राजा वीआर को हाल ही में कामारेड्डी वीआर में मौजूद अहमद मोइनुद्दीन को बिकनूर पीएस सेकंड एसआई के तहत, रामारेड्डी पीएस एसएचओ के तहत के राजा को मदनूर एसएचओ के तौर पर तबादले अमल में लाने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। फौजी जवान मोतीलाल के इंतकाल पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, एमएलसी के कविता व एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया अफसोस का इजहार। वो हर तरह की मदद करने का दिया तयक़ुन। जिले में बड़े पैमाने पर महकमे पुलिस में तबादले, आईजी शिवशंकर ने किया सहाफती बयान जारी। जकरानपल्ली एमपीडीओ ने की इक़दाम खुदकुशी, तबादले से नाखुश होने के सबब इक़दाम खुदकुशी का खदशा। साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खैसर की जानिब से 18 जनवरी को किसान बचाओ और जवान बचाओ एहतजाज रन का ऐलान। इंदलवई मंडल में कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे की कोशिश, आवाज उठाने वाले कायदीन पर मुकदमात दर्ज, अफसोस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।